वसई से लेके मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री का सफर, और आपने तो मराठी इंडियन आइडल और मी होना सुपरस्टार मराठी, उसमें भी आप पार्टिसिपेंट थी, तो उसके बारे में आई जस्ट वांट टू नो। तो रियलिटी शो का ऐसा था कि मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस थी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि और तैयारी की ज़रूरत है, तो इतना जल्दी रियलिटी शो के लिए नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मेरे माइंड में थोड़ा सा एक नेगेटिव थिंकिंग था। बट कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ फैमिली से भी सपोर्ट था, तो दे बूस्टेड मी अप एंड दे told me that you should go for it, just try it out, whatever the result comes you just accept it। कि मुझे फैमिली का सपोर्ट तो था ही, लेकिन फ्रेंड्स और मेरे जो टीचर्स थे स्कूल के, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, जब मैंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनको ये हिंट दिया कि मुझे इसी रूट से चलना है एंड आई वांट टू परस्यू माय करियर इन प्लेबैक सिंगिंग ओनली। जब ऐसा टाइम आता था मेरे लाइफ में भी, करियर में, कि जब मतलब मैं सोचती थी कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, कि कहीं से कोई रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है इवेंट्स के लिए या शोज पीस के लिए, रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो उस फेज़ में आपको बस अपने क्राफ्ट पे काम करना है, खुद पे भरोसा रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, और उसमें फैमिली का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, फैमिली फ्रेंड्स का भी। लोगों को भी एक अच्छा लगा, रे what a girl she is, like right. she is showing her what you can say talent everywhere. Welcome to the Uninfluencer. Today we have the voice from Vasai who is winning heart of Maharashtra and beyond. She is a playback singer and she has given her voice to many serials, jingles, advertisement and many movies. She has completed her Sangeet Visharad and Masters in Music from Mumbai University. Even she was a contestant of Me Hona Superstar and Indian Idol Marathi. She is a lead singer at Star Pravaha's superhit musical show, which is Aata Ho Udya Dhingana. And the biggest achievement of her this year that she has sung for the newly movie released. One is The Well Done Eye, which is Marathi, and Me No Pause, Me Play. She has sung with iconic singer Javed Ali. Now let's welcome the voice of Vasai, Miss Larissa Almeida. So let's welcome Larissa Almeida, beautiful voice and beautiful lady. So Larissa, I just want to ask one thing. आपको कब लगा कि you want to sing, you want to become a singer? So please let us know about all your beautiful journey. So basically, I started learning music when I was in the 8th standard, and before that, I used to sing in the church also, in the choir and all. So people appreciated me a lot when I used to sing in the choir, and there used to be different competitions held during the Christmas time. So I used to take part in that, and I remember once I had also won the competition. So people used to appreciate me and used to motivate me to learn music and go ahead with it. Then I started learning Indian classical, and that's where when I realized that I have that potential to go ahead with it and take it as a career. And I started getting opportunities also. When I was in the 11th standard, I remember, like 10 years back, 10, 12 years back, there's a band, Rhythm Vasekar, and the head of the band, Melvin sir, he had given me an opportunity to sing on the stage for the first time. Like there was a live event happening in Arnala, and he approached me, he wanted me to sing for it. And I sang first time on the stage in front of a lot of like a big crowd. That's when I realized that I have that spark and I can, go miles if I work on my talent, work on my craft. And that's how I realized, and that's when I started. Very nice. So Larissa, आपको कभी ऐसा लगा कि between your education and between your career, like these are two important thing in life. So while doing your education, did you feel that कि जो singing है आपका कहीं पे वो भी as a career बन जाए? डेफिनेटली मुझे बहुत शुरुआत से ही खुद पे भरोसा था कि मुझे इसी में आगे जाना है, लेकिन मैंने कभी एकेडमिक्स पे वो नहीं किया, मतलब इग्नोर नहीं किया, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है लायक बनने के लिए, खुद के बल पे खड़े रहने के लिए एकेडमिक्स इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। सो वो करते करते ही मैंने म्यूजिक की शिक्षा भी ली और मैं इवेंट्स भी करती थी। जब मैं मेरा आई थिंक बोर्ड्स चल रहे थे तभी भी मेरे कुछ इवेंट्स चल रहे थे। सो आई हैंडल्ड इट बोथ इन अ वेरी गुड वे, एंड ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट इज वेरी मच एसेंशियल व्हेन यू आर डूइंग टू थिंग्स एट अ टाइम. So yeah, that also matters, and I'm very fortunate that I have got
So which Lamita. school you were into? I was in St. Anthony's. And college? College, I have done my junior college from Thomas Baptista. Then later I did DEd from Vanitha Vinayalaya, which is in Charni Road. And after that I did correspondence graduation from SNDT College, Santa Cruz. Wow. Yeah. So truly Vasaikar, I can say. Really Vasaikar, yeah. वसई से लेके मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री का सफर, और आपने तो मराठी इंडियन आइडल और मी होना सुपरस्टार मराठी, उस पे भी आप पार्टिसिपेंट थी, तो उसके बारे में आई जस्ट वांट टू नो। ओके, तो मेरी शुरुआत जो है प्लेबैक सिंगिंग की वो हुई कुछ 10-12 साल पहले। तो मैंने एक्चुअली शुरुआत ऐसे की कि मैं लाइव शोज़ तो करती ही थी, लेकिन मेरी मुंबई में कहीं किसी के साथ कोई पहचान नहीं थी जो म्यूज़िक कंपोज़र्स है जाने माने, हिंदी के, मराठी के। मैंने शुरुआत एक्चुअली मराठी से की, क्योंकि अपने स्टेट का म्यूज़िक है तो थोड़ा लगाव ज़्यादा है, और एक रीच मतलब एक पहुँचने के लिए भी वो एक अच्छा, एक क्या कहते हैं, सिंपल ज़रिया था। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग थे मेरे पहचान में जो मराठी के कंपोज़र्स को जानते थे, जो थिएटर भी कर रहे थे। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वसई में या विरार में, तो उनके थ्रू मैंने कुछ म्यूज़िक कंपोज़र्स से मैं मिलने गई उनके स्टूडियो में। और कुछ ऐसे थे जिनको मैंने अपना डेमोज़ फ़ोन पे रिकॉर्ड करके उनको सोशल मीडिया के थ्रू, तब फेसबुक, मेल वगैरह बहुत एक्सेसिबल था, उसके द्वारा मैंने उनको मेरी आवाज़ सुनाई। देन सम ऑफ देम दे लाइक्ड माई वॉइस। कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुझे कुछ अच्छा फीडबैक दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया कि मुझे और क्या इस पे काम करना चाहिए। सो आई वर्कड ऑन इट ग्रेजुअली। बट कुछ ऐसे थे जिनको सच में मेरी आवाज़ अच्छी लगी एंड हु थॉट कि मुझे कुछ चांस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सो दे कॉल्ड मी अप एट द स्टूडियो एंड दे मेड मी सिंग some scratches for them, like some compositions of theirs which they want to present to the producers, but they just want me to like sing it for them, so that the final singer who's gonna come and sing it for the like the final version which was going to be recorded, उनको एक रेफरेंस के तौर पे, एक सुनाने के लिए एक डेमो जो होता है उसके लिए मुझे बुलाया जाता था। तो एक ऐसा फेज था 1-2-3 साल का जब मैंने बस डेमो में गाती रही। तो दैट्स हाउ आई गॉट अ लिटिल बिट रिकग्निशन। और ऐसे काफ़ी कंपोजर्स थे जो एक दूसरे को मेरा नाम सजेस्ट करते थे कि ऐसी ऐसी सिंगर है नहीं, एंड शी सिंग्स फॉर अस डेमोज एंड ऑल, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट। तो वैसा करते करते ही 1-2 टाइम ऐसे हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स थे दे फेल्ट कि मेरी ही वॉइस में क्यों ना फाइनल वर्जन किया जाए रिकॉर्ड। तो दैट्स हाउ द करियर स्टार्टेड। और ऐसी कुछ फिल्मों के लिए मैंने शुरू किया, कुछ एल्बम्स के लिए गाया, कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए मुझे बुलाया जाता था। दैट्स हाउ माई करियर स्टार्टेड प्रॉपरली आफ्टर लॉकडाउन एक्चुअली। और व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? अबाउट द रियलिटी शो, राइट? अबाउट रियलिटी शो। सो रियलिटी शो का ऐसा था कि मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस थी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि और तैयारी की ज़रूरत है, तो इतना जल्दी रियलिटी शो के लिए नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मेरे माइंड में थोड़ा सा एक नेगेटिव थिंकिंग था। बट कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ फैमिली से भी सपोर्ट था, तो दे बूस्टेड मी अप एंड दे टोल्ड मी दैट यू शुड गो फॉर इट, जस्ट ट्राई इट आउट, वट एवर द रिजल्ट कम्स जस्ट एक्सेप्ट इट। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सो मैंने ऑडिशंस का, मुझे किसी ने पोस्ट भेजा था, इंडियन आइडल मराठी के ऑडिशंस चल रहे थे पुणे में और मुंबई में भी थे। तो आई जस्ट वेंट, आई प्रिपेयर्ड 2-3 सॉन्ग्स and I went for the audition, got selected and I was there till the theater round. I mean पूरे महाराष्ट्र में ऑडिशन चल रहे थे और उसका जो थिएटर राउंड था उसमें मैं टॉप 30 तक थी। पुणे में हमारा हुआ था, अजय अतुल एंड बेला शेंडे वर द जजेस। सो आई गॉट टू लर्न ऑल्सो फ्रॉम देम, क्योंकि हमारा एक 5 दिन का वर्कशॉप भी हुआ। जो 30 लोग सिलेक्ट हुए थे टॉप, उनका एक वर्कशॉप कंडक्ट हुआ, उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला ऑफकोर्स। और उसके 1 साल बाद ही कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एक मतलब बुरा लगा था कि टॉप 30 तक ही क्यों, आगे क्यों नहीं सिलेक्ट हुई मैं, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। बट कहीं ना कहीं अभी उनको जैसा चाहिए था वैसा कुछ उनको कमी लगी होगी उस टाइम, तो नहीं हो पाया टॉप 15 तक का जो नेक्स्ट, जो मतलब जहाँ से प्रॉपर शो शुरू होता है, एक स्टेज शो, वो वहाँ तक का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दुख था। लेकिन उसके 1 साल बाद ही और एक अपॉर्चुनिटी आई, जो कि स्टार प्रवाह पे मी होनार सुपरस्टार करके रियलिटी शो स्टार्ट होने वाला था। उसका भी मुझे किसी ने, मुझे कहीं से खबर आई, और आई गेस मुझे प्रोडक्शन से ही कॉल आया था, बिकॉज दे हैड द नंबर्स ऑफ द कंटेस्टेंट हु वर देयर फॉर द इंडियन आइडल। सो दे कॉल्ड मी अप एंड दे टोल्ड मी दैट यू शुड ट्राई फॉर द ऑनलाइन ऑडिशंस। तब ऑनलाइन ऑडिशन चल रहे थे, क्योंकि आई थिंक कोरोना की भी, कोविड की सेकेंड वेव थी, तो थोड़ा सा ऑनलाइन ऑडिशंस के थ्रू पहले वो लोग सिलेक्ट कर रहे थे टॉप 300 लोगों को। तो मैंने टॉप 300 के उस जर्नी में मैंने ऑडिशन दिया, आई गॉट सिलेक्टेड। एंड वो तो बहुत ही लंबा सफ़र था, 3 महीने का हमारा सीज़न चला।
मतलब सीज़न तो बहुत लंबा था। मेरा जो वहाँ पे जो एक रोल था वो 3 मंथ्स का था एंड आई वाज़ देयर टिल टॉप 8 और वहाँ पे सलील कुलकर्णी जो काफ़ी अच्छे पोएट और संगीतकार है, वो आदर्श शिंदे दादा एंड बेला ताई, दे वर द जजेस एंड उनसे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने मिली और क्या म्यूज़िक में, सिंगिंग में और क्या डेवलप करना चाहिए, वो सब उस जर्नी के दौरान मेरे लर्निंग में एक एडिशनल मतलब एक ऐड ऑन हो गया। So रियली हैप्पी I अबाउट इट। feel you have much more patience actually. या जो बता रहे हो आपके जर्नी के बारे में, राइट। हाउ पेशेंस कीप यू सो, मतलब कैसा होता है कि कोई ऑडिशन दो या कोई आप एज अ प्लेबैक सिंगर की तरह काम करो, बट दिस थिंग्स यू नो पीपल मेक्स यू वेरी एंशियस, राइट ओके, कि Right. लाइक और वो एंशियस होना और यू नो अगेन यू आर हम्म। टॉकिंग अबाउट द पेशेंस, करेक्ट। बहुत ज्यादा पेशेंस है आप में. क्योंकि वो फोकस मेरा क्लियर था, वो गोल क्लियर था कि उसी मतलब प्लेबैक में ही करियर करना है। ये डे वन से मेरा डिसाइडेड था। जब से मैंने मतलब जब से मैंने सीखना शुरू किया प्लेबैक क्या था ये पता नहीं था, लेकिन तब से कहीं ना कहीं टीवी पे सॉन्ग सुन के जो तभी तो मतलब श्रेया जी, सुनिधि, इनका ज़माना था 2001 से 10 के बीच में, वो एरा उनका था। तो उनको सुन सुन के एक इंस्पिरेशन था, कहीं ना कहीं उनका एक इन्फ्लुएंस भी था कि हाँ इनके जैसे गाना है। तब प्लेबैक क्या था कुछ पता नहीं था कंसेप्ट, बट देन वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था एंड फिर उसी के वो वे पता था कि कैसे करना है। दैट्स हाउ इट हैपेंड। कितने सारे फेमस संगीतकार के साथ आपने काम किया हुआ है? आई जस्ट वांट टू नो. लाइक आई हैव नॉट केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ इट, बट आई थिंक यू कैन टेक द नेम, फ्यू नेम्स इन इंडस्ट्री काफ़ी लोग हैं। who मतलब supported you. चिनार महेश करके संगीतकार हैं, टाइम पास मूवी के सॉन्ग्स जिन्होंने कंपोज किए हैं। Wow. इफ़ यू नो मला वेड लागले प्रेमाचे हाँ, या हाँ, हाँ. ही पोली साजूक तू पातली, उनके लिए मैंने गाया है। डेट भेट नाम की मूवी आई थी 2021 में, जिसमें सोनाली कुलकर्णी और संतोष जुवेकर ने काम किया है उस मूवी में। उसमें मेरा एक गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट मराठी ब्रेक मेरा, जो आप कह सकते हो। हिंदी में मैंने पहले हिंदी में काम मेरा पहले आया, मराठी में 2021 में ये फिल्म जब आई तब वो सॉन्ग रिलीज़ हुआ, तो दे आर वन ऑफ दोज। एंड उसके अलावा पूछो तो अभी हाल ही में संतोष पुरी जी करके है म्यूज़िक कंपोज़र, उनके लिए मैंने एक गाना गाया। मेनोपॉज मी प्ले नाम की मूवी आ रही है अभी 30 Yes, yes. नवंबर को, जिसमें मैंने जावेद अली जी के साथ एक ड्यूएट सॉन्ग गाया है। Wow. या और बाकी तो ऐसे काफ़ी जाने माने हैं, अभी एकदम से आप पूछोगे तो ऐसे नाम नहीं आते माइंड में। आदित्य बेडेकर करके है, जिनके लिए मैंने शक्तिमान नाम की मूवी आई थी 2022 में, आदिनाथ कोठारे पे कास्ट थे उस मूवी के, तो उसमें भी मैंने एक गाना गाया है। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, कौशल इनामदार है, नीलेश मोरीर है एंड देयर आर सो मेनी यार। अभी अभी हाल ही में एवी प्रफुल्ल चंद्र सर हैं, जिनके लिए मैंने नशीबवान नाम की सीरियल चल रही है स्टार प्रवाह पे, उसका टाइटल ट्रैक मैंने गाया है। मेनी ऑफ दोज, जितना आप Superb. बोलोगे उतना कम है। सतीश देहरा जी करके है, उनके लिए एक राजस्थानी मूवी के लिए मैंने गाया है। रामायण का जो रिकॉर्डिंग हमारा चल रहा है, दैट आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, उसका भी वो भी एक अच्छे जाने माने संगीतकार है और उनके लिए भी मैं गा रही हूँ काफ़ी टाइम से एज अ सिंगर, So एज अ प्लेबैक inspiring, सिंगर। so inspiring. थैंक यू। So Larissa, friends, family, loved one, they support us. But sometimes in society, या जो कुछ लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि सिंगिंग एज अ हॉबी इट्स ओके, इट कैन नॉट बी योर करियर. अपने फ्रेंड्स भी बोलते हैं अरे इतना बड़ा तो सपना देख रही है, ओके, कैसे पूरा करोगी? राइट। तो ये जो चीजें हैं, आप उस चीज को क्या थॉट देना चाहोगी? सो इस मामले में मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ शुरू से ही, क्योंकि मुझे फैमिली का सपोर्ट तो था ही, लेकिन फ्रेंड्स और मेरे जो टीचर्स थे स्कूल के, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे। जब मैंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनको ये हिंट दिया कि मुझे इसी रूट से चलना है एंड आई वांट टू परस्यू माय करियर इन प्लेबैक सिंगिंग ओनली, सो आई हैव ऑलवेज गॉट लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो मेरे मामले में तो आई हैव बिन रियली फॉर्चुनेट। बट ऐसे भी लोग हैं इर्द गिर्द, मतलब मैं जिनको जानती हूँ, जिनका जर्नी मैंने सुना है। सो देर आर पीपल हु हैव लाइक, जिनमें टैलेंट है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो जो एक पुश चाहिए, जो एक फैमिली सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये हमारा फील्ड ऐसा है कि इसमें आप कितना भी टैलेंटेड हो, बट रोज़ आपको कोई बुलाएगा काम के लिए या नहीं, ये मतलब वो नहीं, सर्टन इट Right. अनसर्टन है थोड़ा सा प्रोफेशन। तो इसमें ऐसा है कि जब तक आप एकदम डट के पूरा आप कमांड हासिल नहीं करते, तब तक आप
मतलब लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको मोटिवेट करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए इसमें आपको खुद पे मतलब एक क्या कहते हैं भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, खुद पे फेथ होना ज़रूरी है। तो मैंने हमेशा वही रखा क्योंकि मेरे भी करियर में ऐसे फेजेस आए हैं जब मतलब महीनों महीने ऐसे होते थे जब काम नहीं था, बस मैं गा रही हूँ, सीख रही हूँ, यही था। अपॉर्चुनिटीज़ कम थी शुरुआत के दिनों में। आज ऐसा नहीं है, टच वुड, आज काफ़ी अच्छे से मेरा नाम हुआ है इंडस्ट्री में, तो लोग बुलाते हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन फ़ोन आते हैं मुझे, रिक्वायरमेंट्स आते ही हैं मेरे पास। तो वो मैंने एक मतलब एक लंबी जर्नी है मेरी भी, एक आई हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड अ डेकेड टू अचीव दैट। एक Right. 10-12 साल की जर्नी है मेरी भी। तो वो कहीं न कहीं मैंने खुद पे फ़ेथ रखा जब ऐसा टाइम आता था मेरे लाइफ़ में भी, करियर में, कि जब मतलब मैं सोचती थी कि यार क्यों ऐसा हो रहा है कि कहीं से कोई रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है इवेंट्स के लिए या शोज़ इसके लिए, रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो उस फ़ेज़ में आपको बस अपने क्राफ़्ट पे काम करना है, खुद पे भरोसा रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और उसमें फ़ैमिली का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, फ़ैमिली फ्रेंड्स का भी। उनको आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उन्होंने आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। दे हैव टू ऑलवेज़ कीप फ़ेथ इन यू एंड बूस्ट यू, क्योंकि ये करियर ऐसा है थोड़ा-सा, आर्टिस्ट जो होते हैं वो वैसे भी थोड़ा-सा एक इमोशनल लेवल पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा वीक होते हैं मेरे हिसाब से। Right. क्योंकि Right. वो जिस मतलब जो उनका टैलेंट भी, एक आर्ट भी ऐसा चीज़ है कि कहीं न कहीं एक इमोशंस उसमें जुड़े भावुक हुए कर देता हैं। है आपको. हाँ, Right. वो जैसे बाकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो होता है थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक मैकेनिकल एक थिंकिंग होता है, बट आर्टिस्ट लोगों का Practical. थोड़ा-सा एक अलग है माइंडसेट भी। तो उनको समझने के लिए उनके साथ जो लोग रहते हैं, उनके एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं अराउंड देम, उनको थोड़ा-सा उनको समझ के ही, साथ दे के ही उनको आगे बढ़ाने के लिए जो बूस्ट देना चाहिए, वो होना But you चाहिए। have also shown that confident on yourself, या that and डेफिनेटली। you have worked on yourself that way कि या लोगों को भी एक अच्छा लगा रे what a girl she is, राइट, like राइट, राइट। she is showing her what you can say talent everywhere. या So I think वो भी चीज उल्टी भी होती है. हाँ, हाँ, How you show yourself डेफिनेटली। is यस, very यस, यस, important यस। nowadays, दैट्स हाउ like इट that. इज़, लाइक क्योंकि मैं भी जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ भी ऐसा, मतलब मुझे तो नहीं पता, मतलब मैं भुईगाँव में रहती हूँ। आई एम नॉट अवेयर कि एनीवन हैज़ चोज़ समथिंग व्हिच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स जैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी शुरू से इसमें मतलब काम करना स्टार्ट किया है। मैं जब आई थिंक 17-18 इयर्स की थी तब मैंने कॉलेज के बाद ही मैंने स्टार्ट किया। एंड ऐसा भी टाइम था जब मैं एकेडमिक लेवल पे कुछ नहीं कर रही थी। आई वाज़ जस्ट लर्निंग म्यूज़िक एंड आई वाज़ जस्ट वेटिंग एंड अप्रोचिंग पीपल। उस वो टाइम पे थोड़ा-सा कहीं न कहीं खुद को भी लगता था, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहीं न कहीं कम होता था कि मतलब मैंने ये करियर चुना तो है, लेकिन इसमें आगे जाके मुझे स्कोप है, नहीं है। इसलिए थोड़ा-सा एक डायलेमा था उस टाइम। बट वो एक इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। वो टाइम आप अच्छे से क्रॉस करोगे तब जाके आगे सक्सेस तो मिलेगा ही। हार्ड वर्क और परसिवियरेंस ये तो होना ही चाहिए आर्टिस्ट में। तो वो Exactly. एक मतलब आई हैव केप्ट इट right from the beginning till now. So yeah. Being a disciplined girl, there is one part which is rejection. Right. So, have you faced that kind of rejection? And again, how it reshaped your journey? Okay. So in my journey up till now ऐसे prominently rejection as such मैंने कभी face नहीं किया है fortunately. But जब आप इस वर्ड का यूज़ करते हो तो एक इंसिडेंट मुझे बहुत स्ट्रांगली याद है। 3 साल पहले मुझे वीडियो पैलेस म्यूज़िक लेबल द्वारा एक रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था। Okay. चिनार महेश जो बहुत ही जाने माने म्यूज़िक कंपोजर्स डुओ है मराठी के, उन्होंने कन्याकुमारी नाम का एक सॉन्ग कंपोज़ किया था और उसे मंदार जोड़कर जो एक बहुत पॉपुलर मराठी गीतकार है, उन्होंने वो सॉन्ग लिखा था। तो ही रिकमेंडेड माय नेम टू देम। ही knew me from first. So he recommended my name to the composers and I was called for the recording. और मुझे रिकॉर्डिंग में बुलाने से पहले ही एक दिन पहले मैंने घर से डेमो भी भेजा था। आई हैव माय होम सेटअप। So I recorded that song and I sent to them. So they liked it. They called me for the final version and the owner of Video Palace, Nanu Bhai, he was also present at the recording. आई sang it very well. I mean, मैंने मेरा बेस्ट दिया और ये रिकॉर्डिंग जो था ये कम से कम 5 घंटे चला। मतलब नॉर्मली मैं God. 40-50 मिनट्स में एक गाना आज गाती हूँ, बट उनको इतना प्रिसाइजली वो एक एक चीज़ परफेक्ट करते करते एक एक लाइन को कम से कम 10 बार 12 बार रिटेक पे रिटेक करके वो 2-2 लाइन का ऐसे कर करके पूरा 5-6 घंटे तक हमारा ये रिकॉर्डिंग था। और ये शाम के वक्त का था ठाणे में। तो वसई से मैं ठाणे गई थी डैड के साथ एंड आई रिकॉर्डेड इट होल हार्टेडली, लाइक आई गेव माई 100%।
तो ये सॉन्ग मेरे वॉइस में रिकॉर्ड हुआ और ये 4 से 5 घंटा ये रिकॉर्डिंग हमारी चली। बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ, दे अप्रिशिएटेड मी, दे लाइक्ड द फाइनल आउटपुट ऑल्सो। They sent me in fact the final output, like the final mixed audio was sent to me for the review and all. मुझे अच्छा लगा, आई वॉज हैप्पी कि यार इतना बड़े म्यूज़िक लेबल पे मेरा मतलब मेरा सॉन्ग जाएगा कल को, काफ़ी व्यूअर्स उसको मतलब सुनेंगे। तो एक वैसा मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, आई वॉज हैप्पी इन माई ओन जोन। एंड लेटर आई गॉट टू नो आफ्टर लाइक अ वीक और सो that they have replaced my voice and they have hired Vaishali Samant, and they recorded the same song in her voice just because उनका आज नाम अच्छा है and she has a great fan following. Yes, तो वो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा वीकनेस था। तो कहीं ना कहीं मतलब टैलेंट होने के बावजूद और कैलिबर होने के बावजूद जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं आपके मतलब फॉलोअर्स कम है या लोग आपको उतना नहीं जानते जितना उनको जानते हैं, राइट। तो उस वजह से वो चीज़ रिजेक्शन उस टाइम फेस करना पड़ा। बट आई डोंट टेक इट एज अ रिजेक्शन इन दैट वे। वो अगर ऐसा होता है कि आपका सिंगिंग अच्छा नहीं है इसलिए आपको रिजेक्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत दिल पे लगती बात, एक्चुअली और वो कहीं ना कहीं फिर मुझे वो एक ट्रिगर करती रहती वो बात। जस्ट अ टेक्निकल पार्ट। हाँ, it was a technical part, but yeah, that's the, I mean, I have faced that rejection. But right now you have so many followers, my dear. Yeah. So कहीं ना कहीं वो Fan बाद में followings are there for you. and that matters today. आप हम बोलते हैं कि बस टैलेंट के मतलब जोर पे हम काफ़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, बट आज के दौर पे ऐसा है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का आपका कितना रीच है वो भी उतना ही मैटर करता है। इट्स इम्पोर्टेंट। Larissa, there is one personal question for you. Oh, okay. Still, you are single. What is it exactly? You are waiting for some right time, or career is the reason? So career was never an obstacle for me to be single at this time. Like, so the thing is that I was in a relationship. It was a long distance, and we got engaged last year. But due to some circumstances, it didn't happen. I mean, it didn't work out further, and it took some time for me also to recover from this traumatic incident that had happened for me as well as for my family. But right now, yeah, we are looking for like for me to get settled in life. So yes. So how you overcome about all these things? So first of all, since I am totally into music like 24/7, it somewhere it helped me to move on and it healed me. And second thing is I am also a fitness freak, as you know. So fitness, working out, and practicing spirituality at some level has also helped me to move on and to look up to life in a different way, in a new way. So yes. So not to worry, we are there and we know your caliber. इंडिया में तो आप फेमस हो ही, महाराष्ट्र में हो, इंडिया में हो, but yes, we want to see Larissa, the Larissa. Okay, thank you so much for that. लास्ट 4 साल से आप आता होऊ दे धिंगाणा, ये जो स्टार प्रवाह का एक प्रोग्राम में आप कर रहे हो, जी। सो प्लीज आप बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई थिंक सिद्धार्थ जाधव इज होस्टिंग दैट, yes. एंड आई हैव वॉच्ड आई थिंक ट्वाइस, कि बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे सीरियल्स के लोग आके कंपटीशन एंड एवरीथिंग दे रन विथ, एंड बहुत अच्छा लगा। करेक्ट। सो कैन यू एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स? डेफिनेटली। सो यस, आता हो दे धिंगाना ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि ये हमारा जो शो है म्यूजिकल गेम शो है और अभी 4th सीजन शुरू है स्टार प्रवाह पे। एवरी वीकेंड इट्स एयरिंग ऑन स्टार प्रवाह एट 9 PM एंड वी हैव गॉट ह्यूज TRP फ्रॉम होल महाराष्ट्र एंड पीपल आर लाइकिंग माई वर्क इन दिस शो। सो बेसिकली माई रोल इज़ कि ये एक म्यूजिकल गेम शो है, सिद्धार्थ दादा इज़ होस्टिंग द शो, एंड इसमें क्या है कि स्टार प्रवाह पे जो डेली सोप्स चल रहे हैं तो वो डेली सोप्स के 6 आर्टिस्ट आते हैं, एक टाइम पे 2 सीरियल्स के लोग आते हैं और उनके बीच में म्यूजिकल कंपटीशन होता है, गेम्स होते हैं, म्यूजिकल गेम्स होते हैं। सो इट्स लाइक दे हैव टू रिकॉग्नाइज द सॉन्ग बेस्ड ऑन डिफरेंट कंसेप्ट्स, लाइक जैसे उनको कोई इमोजी दिखाते हैं डिस्प्ले पे तो इमोजीज देख के उनको पहचानना है कि कौन सा सॉन्ग है। वंस दे रिकॉग्नाइज द सॉन्ग आई हैव टू सिंग इट, when I sing it they come on the floor and dance। तो ऐसा एक थोड़ा सा एक कॉमेडी फन लविंग एक एटमॉस्फेयर होता है सेट पे। तो ये एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी इनाम मिला है, लोग मुझे पहचानने लगे हैं। रियलिटी शो में भी मैं थी तब भी ये चीज़ थी ही, फेस वैल्यू था अच्छे से, स्क्रीन पे मैं दिखती थी लोगों को हर हफ्ते,
लेकिन उसमें कैसा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, तो कहीं ना कहीं 3-4 मिनट का मेरा परफॉर्मेंस था, तो उतना वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा था जितने इसमें होता है। और ये 4 साल से चल रहा है, चौथा सीज़न है। फॉर्चुनेटली 4 ही सीज़न में उन्होंने मुझे ही हायर किया एज अ सिंगर। तो अच्छा लगता है। और इसमें काफ़ी अच्छा सीखने को भी मिला मुझे कि जैसे कोई स्पॉन्टेनियस मोमेंट होता है स्टेज पे, तो तुरंत आपको उस पे रेफर करके कोई गाना गाना पड़ता है। तो वो एक स्पॉन्टेनिटी भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी सीखने को मिला मुझे। सिद्धार्थ दादा का जो एनर्जी है, उनका जो एक वाइब है, वो देख के भी एक मतलब काफ़ी मेरे में भी बदल आए, एक स्टेज प्रेजेंस कैसा होना चाहिए। तो वो मैं सीख रही हूँ उनसे मतलब अभी शूट हमारा जारी है। 6 मंथ्स का शेड्यूल होता है, तो अभी 3 एपिसोड्स बाकी है इस सीजन के। फिनाले इज कमिंग अप Oh, नेक्स्ट वीक। अच्छा. So yeah, looking forward for more opportunities. So Larissa, you have any upcoming projects coming up? Like, Yeah, there are like multiple projects I've been doing, I've done, and I'm waiting for them to come up and Releasing soon वाला. या तो उसमें से बताने जैसा तो अभी फिलहाल तो हमारी मूवी थिएटर में बहुत अच्छा नाम कर रही है। वेल डन आई नाम की मूवी रिलीज हुई है पिछले हफ्ते, 10 days बैक एक्चुअली, जिसमें विशाखा सुबेदार जी जो बहुत अच्छी कॉमेडियन है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। मतलब मेन स्टार कास्ट वही है। और वेल डन आई, तो आई का जो रोल है वो उन्होंने किया। उसमें मेरा एक गाना है, क्षण क्षण तुझा मला दे, मराठी मूवी है ये, जी म्यूज़िक पे ये सॉन्ग रिलीज है ऑलरेडी। और उसके अलावा अभी हाल ही में नशीबवान नाम की एक सीरियल ऑन एयर है स्टार प्रवाह पे, लाइक मतलब जारी है। तो उसका टाइटल ट्रैक जो है वो मैंने गाया है। wow. म्यूज़िक कंपोज़र एवी प्रफुल्ल चंद्र जो है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे मूवीज़ का म्यूज़िक किया है, उन्होंने मुझे इस काम के लिए अप्रोच किया था। और उन्हीं का म्यूज़िक है, बहुत सुंदर सॉन्ग है, तो वो मुझे गाने का मौका मिला। तो ये मेरी दूसरा मतलब टाइटल ट्रैक का अगर आप पूछेंगे तो ये दूसरी सीरियल है जिसका मैंने टाइटल ट्रैक गाया है। इससे पहले चुलबुली चाची नाम की एक सीरियल आई थी 2019 में, कोविड से पहले, उसका भी सॉन्ग मैंने गाया था, अंजन टीवी पे थी। और ये मराठी का तो फर्स्ट है, तो इट्स रियली स्पेशल, क्योंकि ऐसे टाइटल सॉन्ग सुन सुन के ही कहीं ना कहीं एक बचपन से एक ख्वाहिश थी कि ऐसा किसी कभी के लिए मुझे तो भी, टाइटल हाँ सॉन्ग गाओ. हाँ, क्योंकि घर पे मॉम को बहुत मतलब शौक है सीरियल्स देखने का। तो ऐसे टाइटल ट्रैक सुन के कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि कभी मेरा भी नाम आए। जब सीरियल शुरू होती है, वो सॉन्ग जब प्ले होता है, तो जब नशीबवान हम देखते हैं टीवी पे, जो गाना जब आता है, क्रेडिट्स में जब नाम आता है, पार्श्व गायिका लैरिसा अल्मेडा, बहुत खुशी होती है। मतलब एक ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अब तक जो मेहनत की है कहीं ना कहीं उसका एक फल मिल रहा है इस द्वारा। और बाकी आप पूछेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो अभी हाल ही में 30 नवंबर को एक मूवी रिलीज़ हो रही है, बॉलीवुड मूवी है, मेन स्ट्रीम मूवी है वो, मेनोपॉज मी प्ले, मतलब मी नो पॉज मी प्ले, ऐसा उसका कंसेप्ट है। तो उसमें मैंने जावेद अली जी के साथ एक सॉन्ग गाया है, इसका पिछले महीने ही रिकॉर्डिंग हुआ था। संतोष पुरी जी करके म्यूज़िक कंपोज़र है, उनके लिए मैंने गाया है। और अभी हाल ही में सूर्या नाम की एक मराठी मूवी है जिसका हिंदी में रीमेक हुआ है, उसमें भी मैंने एक गाना गाया, एक होली का सॉन्ग था, तो वो भी पिछले हफ्ते ही उसका डबिंग हो चुका है। So आज waiting तक for it. कितने आपने एज अ प्लेबैक सिंगर गाना गाया है? बहुत होंगे, मतलब ऐसा कोई काउंट नहीं है। फिर भी अप्रोक्सीमेटली मे बी. मेरे हिसाब से 700-800 सॉन्ग्स माय डेफिनेटली, गॉड. क्योंकि रोज ही काम कर रही हूँ, टचवुड, वर्किंग एवरी डे। People should know ना, we are Vasai people, because this channel is only for we मेजर can say viewers are from anywhere, but when we say specifically they should know या what you have did मेजॉरिटी मेरा जो actually. काम है वो डिवोशनल में ज़्यादा है। आजकल मेरे को डिवोशनल में काफ़ी लोग ज़्यादा, मतलब डिवोशनल फील्ड में जो So what you are doing in devotional field? लाइक आई एम सिंगिंग भजन्स एंड ऑल। Okay. सो काफ़ी ऐसे म्यूज़िक लेबल्स हैं, मोस्टली नॉर्थ इंडिया से है, हरियाणा, पटना, यहाँ से मुझे डीएम्स आते हैं कि आप हमारे लिए गाइए। Wow. और एक बेनिफिट ऐसा है कि मेरा खुद का होम सेटअप है मेरे घर पे, आई हैव बीन लाइक वर्किंग एट होम ऑल्सो। सो वहाँ से मैं गा के उनको, मेरे को वो लोग इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक प्रोवाइड करते हैं और रेफरेंस के लिए एक डमी प्रोवाइड करते हैं। आई जस्ट डब माई वोकल्स, आई सेंड इट टू देम एंड दे मिक्स इट, दे रिलीज इट, इट्स गोइंग ऑन। And how about Ramayana? I think that I want to. yes. So I wanted to say about that also. तो ये रामायण का जो प्रोजेक्ट है ये करीबन 1 साल से चल रहा है, और मोर देन दैट आई गेस। 2024 अक्टूबर में हमने इस काम का मुहूर्त किया था। तो अमित कुमार जी जो है, किशोर कुमार जी के बेटे, उनके साथ ड्यूएट वर्जन में ये मेरा काम शुरू है। Wow. हाँ, Super. लेकिन ये काम ऐसा है कि बहुत मतलब गैप्स के उसमें स्केड्यूल्ड होता है, लाइक
मंथली 2 मंथ्स में एक सेशन रहता है हमारा, क्योंकि अमित कुमार जी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो उनके स्केड्यूल के हिसाब से चल रहा है। और ऑलरेडी ये लेंदी काम है, बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है बहुत ये। बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरा जो रामायण का ग्रंथ है 1032 पन्नों का, वो पूरा हम मतलब गाने वाले हैं। तो उसका जो पहला हमने शुरुआत जो की है वो सुंदरकांड से शुरुआत की है, हाँ, एंड वी आर डन विथ इट, एंड नाउ वी आर ऑन बालकांड। तो इट्स गोइंग ऑन, और ये चलता ही रहेगा। मतलब ओडली म्यूज़िक के लिए ये मैं गा रही हूँ। सुधाकर शर्मा जी जो लिरिसिस्ट है, उनके लिए उनका उनका खुद का ये लेबल है, तो ही अप्रोच मी फॉर दिस वर्क, एंड yeah, it's going on. लैरिसा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। 700 गाने आपने गाए हैं इन 7 लैंग्वेजेस, Right. इन आई थिंक सो मेनी वैरायटीज। हाँ, मतलब क्या बात करूँ। मेरे को ये पूछना है आपसे, जी। 15 साल पहले की लैरिसा हम्म, और अब की लैरिसा, हम्म। अगर दोनों बातें करना चाहेंगी तो वो क्या बात होगी? मतलब जो लैरिसा बचपन वाली थी, उसने जो सोचा था वो हुआ क्या सफल? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ऐसा मैं कभी मतलब ये थॉट कभी आया नहीं माइंड में कि मैं, अगर मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं मेरे बचपन का जो मेरा एक था पर्सनालिटी, उससे मैं अगर वापस मुझे बात करने का मौका मिले, कुछ कहने का, कुछ पूछने का मौका मिले, तो कैसा होगा। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, वैसा है। So one thing I would like to say to my younger self is that whatever I had imagined कि क्या होना चाहिए अगले 10 साल में, अगले 5 साल में मेरे करियर के रूट में, तो वो कहीं ना कहीं मैंने आज हासिल किया है। तो मैं शाबाशी देना चाहूँगी मेरे यंगर सेल्फ को कि मैं डट के तभी मैंने मतलब मैंने वो छोड़ा नहीं कहीं पे। काफ़ी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्या मैं सही कर रही हूँ नहीं, थोड़ा सा एक सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं, वह वैसे फेजेस आए लाइफ में, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी, और मैंने वो प्रोसेस एंजॉय किया। जो थोड़ा बहुत कहीं पे ऐसा भी हुआ कि जो चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट की वो उस तरह से नहीं हुई, थोड़ा अलग तरह से वो चीज़ हुई लाइफ में, लेकिन फिर भी मैंने डट के सामना किया, हिम्मत रखी, और इसीलिए मैं मेरे यंगर सेल्फ को हमेशा शाबाशी देना चाहूँगी। एंड आई एम रियली आई फील कि शी मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ मी, द 10 year बैक वाली लैरिसा, है ना। And even we Yes. are proud of you. Again, I'm telling you. And your journey is so inspiring actually. Yeah. I think मैंने अभी भी बात करना चाहूंगी, बीइंग वसई विरारकर, सो मतलब क्या बोलूँ, ऑल हार्टेड, लाइक ऑल हार्ट टू यू। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आर्ट पे तो मैंने वर्क किया ही, मेरे क्राफ्ट पे, लेकिन एक लक फैक्टर भी जो होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। और मेरे मतलब मेरे इसमें सिचुएशन में वो लक फैक्टर मेरा बहुत साथ दिया है शुरू के दिनों से ही, ऐसा मुझे लगता है। जो अभी मैंने सीरियल का गाना भी गाया है, उसका भी टाइटल वही है, नशीबवान। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को नशीबवान मानती हूँ, मराठी में जिसे कहते हैं लकी, क्योंकि इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलना और उस पर इतने अच्छे से काम करना, और खुद की आइडेंटिटी एक इंडस्ट्री में बनाना इज़ नॉट अ like small thing, and that somewhere because of the luck, because of God's grace, my parents, मेरे गुरु के आशीर्वाद, उनके मतलब उसके सिवा तो ये पॉसिबल नहीं था। जो मेरा हार्डवर्क है मैं जानती हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी डेफिनेटली मैटर करती है, एंड these things have really worked for me in a good Even you way. are lucky, we are lucky actually, lucky to have you on our podcast. And Thank you. I hope जितना भी आपने सोचा है आगे, ओके, वो वैसा ही हो जैसे आप सोच रहे हो। Correct. और क्या बात करूँ आपके बारे में, मतलब जितनी बात मैं करूँ ना, वो मेरे क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे पूछूं, क्या पूछूं, बट Correct. you have so much, you have done so much. And going forward, I am looking forward that the Larissa Almeida soon. So Yes. thank you so much for having on our podcast, Yes, the yes, yes. Uninfluencer. So I just want to tell you further, we have our team, okay, the podcast जो हो रही है, तो उसके लिए एक टीम भी लगती है। Okay. Okay, so we have Rain Furtado. She is even with me. She is our chief editor. Okay. Our Anna. Okay, then Sagar is there, Nilima is there, Ruben, Deep. ये जो जितना भी हमारा जो team है, they are working for this, and I want to thank them. Right. Literally. Definitely, it's So, a teamwork. Actually. Yeah. So, and even I am really grateful that you called me and you made me speak so much
and made me recall those, those initial days when I started my journey and how I came up to here. So it's been a long journey, and there were lots of ups and downs in the journey so far. So yeah, I'm really grateful that you called me and made my day. Really, thank you.